So good morning, dear students. So today we are going to be start a new unit that is called theory of failure. And theory of failure, we have the five theories of failure which is utilized based on the property of the materials, and these theories are very important for designing any component of a machine component or structural component. We have to be considered these theories of failure. So let's move ahead. So we have five theories of failure in our syllabus. So theories of failure, these theory are utilized based on the material property. ठीक है? So first theories of failure is maximum principal stress theory, and another by the name of proposer or inventor of this theory is the Rankine. So it is also called the Rankine theory. ठीक है, आपको समझ में आया? Maximum principal stress theory को we can also say the Rankine theory. So you have to remember by the both terminology, maximum principal stress theory as well as Rankine. दोनों तरह से आप याद रखिए इसको. Then second one is the maximum shear stress theory. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जैसा नाम है वैसी थ्योरी है, मैक्सिमम shear stress theory, and also the name is Tresca theory. And maximum principal strain theory, that is Saint Bernard's theory. And fourth one is the maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory, it is called Hague theory. And fifth one is the maximum strain energy or distortion strain energy theory. So, and name of this theory is also, that is a von Mises theory. This is a very popular von Mises one. So we have five theories of failure. आप इसको as it is, you just try to remember it. First one is the maximum principal stress. Maximum principal stress is sigma one. So there is आपको मिल गया, there is a must be a relation between the sigma 1 and sigma 2, that is called maximum principal stress. जो का फॉर्मूला आपको पता है, आपने निकाला हुआ है, that is we have studied in the first unit itself. So that is called the maximum principal stress theory. Somewhere is we are discussing here the maximum principle. We will talking about the maximum principle. Or what is the maximum principle? That is sigma 1 and sigma 2. And maximum shear stress theory. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ मैक्स, that is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2. You have already studied this one also. And maximum principal strain. So like the principal stress, there is a theory of maximum principal strain. Maximum principal strain is also, that is a Saint Bernard theory. And strain energy theory, we have studied about, we know that what is the strain energy, and maximum shear strain energy, we also know that. Let's move ahead in detailing. So you remember as it is. So introduction of this, dear student. So what is the failure factor in each theory of failure? In the first, in the stress is the failure factor in the sorry, maximum principal stress theory. In maximum principal stress, the failure of the material will occur due to the stress. And shear stress theory, it here also, in maximum shear stress theory, here is also the failure of the material is stress. In and strain is also the cause of failure. In which theory? Maximum principal strain theory. And last two one, where the cause of failure is the energy. So the maximum strain energy theory और maximum shear strain energy theory, इस दोनों में the cause of the failure of the material is the energy developed and trapped inside the material. So this you remember, try to remember all these things. Then let's discuss first one, first theory.
So as per this theory, when the maximum principal stress induced in the material under the complex loading, complex loading का आपका मतलब सिंपली है, आप जब एक से ज़्यादा अलग कई डायरेक्शन में आप उसमें लोड अप्लाई करते हो, so that is called the complex loading. And the possibility of the acting the principal stresses, probability ज़्यादा होती है when you applying the different kind of loading. ठीक है, इसलिए बोला then when the maximum principal stress induced in a material under the complex loading, it may be two-dimensional object, it may be three-dimensional object, when you apply the three load from two or three directions, exceed the maximum normal strength in a simple test, so क्या होगा, material failed. And this theory is good for the brittle material. आप इसको और समझने की कोशिश करिए. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी है 2D है, मे बी 3D मान लो, 2D मान लो मेरे पास वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, we have this object, okay, and we apply load here, in this, here, and is this axis also, here and in back side also. So three-dimensional loading in this object. So definitely some maximum principal stress will be act on some plane inside this element which you have considered. तो ये कहीं भी अंदर एक्ट कर रहा, मान लो ऐसा गया और ऐसा गया और ऐसा थ्री डायरेक्शन में ये भी एक्ट करेगा, ठीक है. सो दिस इज एक्टिंग. सो द कंडीशन इज दैट देयर कि यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज हियर सेइंग दैट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, उनकी जो वैल्यू है उस मटेरियल की, जिस मटेरियल में जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस है, अब बिटल के लिए होगा तो अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, बिटल के लिए ऑटोमेटिक दैट पॉइंट बिकम द ultimate, or if that material is ductile, so it's become yield point. So उस yield point पे जो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो मटेरियल फेल हो जाएगा. इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू दी कॉम्प्लेक्स लोडिंग, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सिग्मा 1 या सिग्मा 2 की, वो उस मटेरियल के यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये इस प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ये बोलती है. सो आप आइए नेक्स्ट नीचे लाइन में आइए, और जैसे ये बिटल मटेरियल हो गए तो यहाँ जो आपने यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ है मटेरियल की, यहाँ पर आप अल्टीमेट पॉइंट यूपी कर देना बस. और so let's sigma yp is the yield point stress. ये हमने मान लिया कि उस मटेरियल की यील्ड पॉइंट स्ट्रेस कहाँ से निकालते हो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, वो आप निकाल सकते हो. लेट्स yp is the yield point stress of the material and principal stress sigma 1 is the perpendicular to the principal stress sigma 2. You know that sigma 1 sigma 2 are both are the perpendicular as per this theory. तो as per this theory क्या होगा, this the ratio of sigma by 1, या आप ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे एक स्टेप और पहले लिख सकते हो कि सिग्मा 1 मस्ट बी लेस होना चाहिए, या मैक्सिमम वो उसके इक्वल हो सकता है. किसके, इसके सिग्मा वाई के बाय पी के, ये कंडीशन हो सकती है. तो इसको इधर भेज दो तो ये ऐसा वाला हो जाएगा, और जब सिग्मा 2 कंसीडर करोगे दिस बिकम लाइक दिस. सो this is the condition for the safe material by using this maximum principal stress theory. अब ये देखो आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 1 बाई पी और सिग्मा 2 बाई पी दो वैल्यूज हैं, ये देख लीजिए. तो आपने क्या किया, इनको एक को सिग्मा 1 अपन बाई पी को एक्स एक्सिस की तरफ भेज दिया और इसको बाई 2 अपन बाई पी को बाई एक्सिस में रख दिया,
और इसकी वैल्यू रखी 0 से लेके 0.5, 0.6, 0.7, 0.10, 1 तक, तो आपको ये ऐसा स्क्वायर मिला। तो ये स्क्वायर ये इंडिकेट करता है भाई, जब तक मटेरियल के इसका रेशियो y1/p का रेशियो 1 तक रहेगा, किधर भी, इधर इधर इधर, तब तो सेफ है। और जहां ये इसके ऊपर गया, इधर गया बाहर, तो मटेरियल आपका सेफ नहीं रहेगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है किसका, इस डायग्राम का। तो ये डायग्राम भी आपको साथ में बनाना पड़ेगा इतना लिखने के बाद, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, रेशियो, क्यों 1 कहाँ से आया मैक्सिमम, यहाँ से, ये 1 है, रेशियो मैक्सिमम कितना है 1 है, इसलिए मैक्सिमम 1 1 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप आराम से बढ़ाते जाएंगे, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका रेशियो 1 से ज़्यादा किसी भी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर होगा सो दैट मटेरियल विल डेफिनेटली फेल एज पर द दिस थ्योरी, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ट और गुड फॉर द ब्रिटल मटेरियल। सो ये आपको याद रखना है चीज़, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है ट्रेस्का। ट्रेस्का भी आपको दूसरे नाम से भी याद रखना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम इन द क्वेश्चन दे आस्क define the Rankine, Tresca and von Mises theory. So you have to be remember these theory as the by the name of scientist and their actual name. So as per this theory, they are having the same information. Like to try to understand, this theory say when the maximum shear stress in actual case, एक्चुअल केस मतलब 3 डायमेंशनल लोडिंग जो आप कर रहे हो, और अब कॉम्प्लेक्स लोडिंग कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स लोडिंग की कैसे, इट एक्सीड मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस इन अ सिंपल टेस्ट, देन मटेरियल इन मतलब इन द टेस्ट मटेरियल केस, सो इफ इन दिस केस मटेरियल विल फेल। देखिए, the maximum shear stress in actual case exceed the maximum allowable shear stress in simple test of the material. So अगर ऐसा हुआ, so material will fail and this theory is good for the ductile material। समझिए, आपने पढ़ा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये हमने देखा था पहली यूनिट में। ये मैक्सिमम जो आप निकालते थे टाउ मैक्स, अगर मोर सर्कल याद होगा तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो दैट वैल्यू कितनी थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि दिस टाउ मैक्स लेस और इक्वल टू होना चाहिए उसके शेयर जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी इन द सिंपल टेस्ट, है ना, सिंपल टेंशन टेस्ट जो आप शेयर टेस्ट जो करते हो बेसिकली, उसका मतलब ये है उसमें। तो आप ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 लेस और इक्वल सिग्मा बाई पी बाई 2, और शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी लगभग सिग्मा बाई पी के आधी होती है। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट वहां पर सिग्मा बाई पी लिख दिया। चलिए, सो दिस रिलेशन बिकमिंग द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस और इक्वल इज सिग्मा वाई पी। इन दोनों के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा वाई पी माइनस सिग्मा 2 सिग्मा वाई पी लेस और इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो आप इनको फिर एक्सिस के रूप में रख दो इस दोनों वैल्यू की। तो अब आप देखिए इनकी वैल्यू आप जब पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू अलग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा। सो लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पॉइंट, ये 1 ही है बेटा, ये वाला 1 ही है, यहाँ 1 है, इस कॉर्नर में 1 है, इस कॉर्नर में 1 है, और इस कॉर्नर में भी 1 है, और यहाँ भी 1 ही है। ठीक है, तो अगर इस ब्लॉक के अंदर ये जो ये बना है आपका
इसके अंदर अगर रहता है मटेरियल, ये रेशियो इसकी वैल्यू, तो वो मटेरियल सेफ है, अदरवाइज उसका फेल्यूर होगा। ये थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, छोटी छोटी है। इसके बाद लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मैक्सिमम प्रिंसिपल strain theory, and another name is Saint Venant theory. In this theory, it is assumed that failure by yielding of material takes place when the maximum principal strain in the material is subjected to the principal stress is equal to strain at the yield point in simple tension or compression test. यील्ड स्ट्रेन पॉइंट की स्ट्रेंथ आप सिंपल कंप्रेशन निकालते ही हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी उस स्ट्रेन की वैल्यू इट मस्ट बी क्या होनी चाहिए, वो तो एक्चुअल मटेरियल की है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। ये देखो आप, चलिए तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये आप इससे फैमिलियर हो, 1/E सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3। म्यू क्यों आया, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आपने पॉइजन रेशियो और उसके बाद पढ़ा है 3 डायमेंशनल अगर स्ट्रेन निकालनी है, और स्ट्रेस यहाँ पर कौन से हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होगी वो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस। दैट्स वाई वी कैन राइट इज 1/E सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3। म्यू क्यों, ये लेटरल से उस डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। देन इज द यंग मॉडुलस एंड म्यू द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं। तो दिस थ्योरी से दैट E1 इज लेस इक्वल टू सिग्मा YP/E, सिग्मा बाई पी अपान ई, और सिग्मा बाई पी अपान ई क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, स्ट्रेन। सिग्मा बाई पी अपान ई ही स्ट्रेन कहलाएगा जो ऑब्टेन होगा सिंपल टेंसाइल टेस्ट के कारण, जो सिंपल टेंसाइल टेस्ट के कारण होगा। अब देखिए, अब ये वैल्यू आप E1 की पिछले अभी रखा, वहां से रख दिया, और ये लेसल इक्वल है, इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी ले सकते, इनमें से बराबर ले लो, तो मैंने यहाँ बराबर ले लिया। ठीक है, या अपन यहाँ नहीं निश्चित डाल लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, सब एक जैसे ही रखेंगे, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें, ये वहाँ ऐसे होता है ये। ठीक है, तो ये रखा, अब यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, ये अब हम ऐसे लिख देंगे। अब ये तो 3 डायमेंशनल के लिए, अब 2 डायमेंशनल केस के लिए सिग्मा 3 हो जाएगा 0, तो ये रिलेशन में ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस और इक्वल सिग्मा वाई पी, इन दो इसको इधर भेज दिया और उसके नीचे भेज दिया, तो ये रिलेशन ऐसा बन गया। सपोज थोड़ी देर के लिए अगर तुम इसको x मान लो और इस वाले टर्म को y मान लो, इसको y मान लो, तो ये रिलेशन हो जाएगा x माइनस म्यू वाई। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस दोनों साइड लेना है ना आपको, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस। ये हो गया 2 डायमेंशनल लोडिंग के लिए, है ना। चलो, अब मैक्सिमम, अब आया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसको बोलते हैं हेग थ्योरी। अब दिस थ्योरी, एज पर दिस थ्योरी, ये स्ट्रेन एनर्जी पे बेस है। तो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब मटेरियल ड्यूरिंग इट्स, जब हम उसमें लोडिंग करते हैं, ड्यूरिंग द लोडिंग, तो स्ट्रेन एनर्जी कुछ इसमें एब्जॉर्ब होती है। एज पर दिस थ्योरी द फेल्यूर और एल्डिंग ऑफ मटेरियल occurs when the strain energy per unit volume stored in the machine component, strain energy stored in the machine component exceed to the strain energy stored in the per unit volume at the yield point stress in simple tensile test। अब इसमें दो चीजें हो, एक प्रिंसिपल वाला पार्ट आता है और एक सिंपल वाला पार्ट आता है। तो सिंपल वाला होता है वो एक्चुअल टेंसाइल टेस्ट से होता है, वो कभी भी उसकी वैल्यू हमेशा
उसकी वैल्यू जो डेवलप हुई लोडिंग के कारण उससे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉम्प्लेक्स लोडिंग, ये फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का होता है। तो यू एज इट इज यू रिमेंबर दिस। ये किसके लिए होता है? व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उस प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण कितनी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। सो 1/2 इज सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड, ये आपको पता है ये क्या होता है, ये निकाला था हमने, एरिया इंटू वॉल्यूम, फिर उसकी वैल्यू रहे तो लास्ट में 1/2 सिग्मा बाई पी स्क्वायर अपन ई, ये निकाला था अपन। ठीक है। सो अब कंडीशन लगा दी लेस और इक्वल टू दिस, ये 2e कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब 3 डायमेंशनल केस की बात करूंगा तो जहां जहां ये बाई 3 दिखेगा वो सब जीरो कर लेना आप, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको इधर भेजोगे तो कुछ ये ऐसा दिखने लगेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ध्यान से देखो। तो अब इसके जब ये नई इक्वेशन, अगर तुम इसको x मान लो, x, इस वाले को y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो ये रिलेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो वी विल गेट, ये हमको ऐसा वाला मिल जाएगा, ये देख लो, ये एलिप्स जैसा ये। तो अब इसके अंदर जो भी आएगा रेशियो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर गया तो मटेरियल इस थ्योरी के हिसाब से फेल हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स लास्ट थ्योरी अपन डिस्कस कर लेते हैं, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन वी आस्क अलाउ फॉर द क्वेश्चन। Last one, it is the an important one, maximum shear strain energy theory, distortion energy theory. Yet according to this theory, failure by yielding occur when the energy used in changing the shape per unit volume of a component is equal to the distortion energy per unit volume at the yield stress of a specimen subjected to simple tensile test or compression test. ठीक है, चाहे टेंसाइल टेस्ट करो चाहे कंप्रेशन टेस्ट करो, वो एनर्जी जो उस मटेरियल की शेप चेंज करने के लिए होती है। शेप चेंज करना मतलब सीट मेटल वर्क, बेसिकली सीट मेटल वर्क में हम उसका शेप चेंज करते हैं। ठीक है। सो ये है, तो द शेयर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला इज 1/12 जी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर, ये होता है। एंड स्ट्रेन एनर्जी एट द यील्ड पॉइंट होता है शेयर स्ट्रेन एनर्जी होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6 GP। अब ये एज पर दिस थ्योरी लगा दिए, दोनों की इक्वेट कर दिया, जो कट रहा है तो काट देंगे, जो नहीं है तो उसको उसके रख देंगे। फिर 2 डायमेंशनल केस की बात करेंगे तो y3 वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो दिस रिलेशन बिकम लाइक दिस, ये देख लो। तो ये क्वेश्चन कुछ इसमें भी इलेक्ट्रिकल से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा और साफ मिलेगा इस तरह से। तो ये हो गया थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन मैं कल बता दूंगा, और ये फेल्यूर क्राइटेरिया वो भी बता दूंगा। So, thank you so much for listening to the lecture.